সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভারতের সেভেন সিস্টার্স নিয়ে নানান রকমের মন্তব্য করতে শোনা গেছে। এমনকি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসকেও কথা বলতে শোনা গিয়েছে সেভেন সিস্টার্স নিয়ে। তবে এবার কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে। আজ তাক বাংলার মুখোমুখি হয়েই এই বিষয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, এখানে কোন মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে জানেন? এখানে যাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তিনি হলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, এখন বাংলাদেশ এবং তাদের রাজনৈতিক নেতারা খুব সরাসরি বলতে শুরু করেছেন যে নর্থ ইস্ট বাংলাদেশের একটি অংশ। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে অন্য দেশের নেতারা এলে মোহাম্মদ ইউনূস নির্দিষ্ট মানচিত্রে উত্তর পূর্বের সঙ্গে একত্রিত করে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র উপস্থাপন করছেন। ভারত বিরোধী প্রচার আরও বেড়েছে। বিশেষ করে বলা হচ্ছে যে উত্তর পূর্ব আমাদের এবং উত্তর পূর্ব সম্পর্কে ব্ল্যাকমেলিং চলছে। আমাদের আরও বেশি করে সেনা আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। যদি আক্রমণাত্মক না হও, অন্তত প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যে তো এটা করা উচিতই উচিত বলে মন্তব্য করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। কি বলেছেন তিনি শুনুন। अभी बांग्लादेश एंड इट्स पॉलिटिकल लीडर्स ये लोग बहुत स्ट्रेट से बोलना शुरू किया कि नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी पार्ट ऑफ बांग्लादेश। अभी आपको देखा होगा कि मोहम्मद यूनिस जब फॉरेन लीडर्स आते हैं, ही प्रेजेंटेड ए मैप ऑफ बांग्लादेश विथ नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर मैप। सो जब से शेख हसीना का गवर्नमेंट डिस्क्लोज हुए, मोहम्मद यूनिस का सरकार आए, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा ज्यादा हुए, खास करके कि नॉर्थ ईस्ट हमारा है। एंड चिकन नेक को लेके जो ब्लैकमेलिंग है, दे हैव उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। सो मेरा लगता है कि दैट वाज द डिजाइन राइट फ्रॉम द डेज ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो when it was undivided Pakistan. मेरा लगता है कि you cannot treat Bangladesh as a friendly country. You have to remain alert, and they have a sinister design so far as Northeast is concerned. Now it has become apparent. अभी वो दिखाई देते हैं straight away. हाँ, और वो बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में इस वक्त फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं। Obviously जब आप इंडिया का साथ नहीं है, you will be with Pakistan. So वो तो एक बात है, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो एक तत्काल प्रभाव हो सकता है, इट इज लाइक इन दैट सिनेरियो। सो हम लोग अपना विजिलेंस को बढ़ा के रखना है। वी हैव टू पोस्ट मोर एंड मोर आर्मी पैरामिलिट्री एटलीस्ट फॉर डिफेंसिव पर्पसेस इफ नॉट ऑफेंसिव। শুনলেন তো, বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের সেভেন সিস্টার্স নিয়ে করা বিভিন্ন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ঠিক কি বলতে চাইলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি শেষে এটাও বললেন যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে না, অফেন্সিভ না হয়েও ডিফেন্সিভ ভিত্তিতে আমাদের সেনা মোতায়েন, আধা সেনা মোতায়েন করা জরুরি, মানে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য। এমনকি এই পরিস্থিতিতে ওই সমস্ত জায়গায় আরও বেশি করে সেনা আধাসামরিক সেনা মোতায়েন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। আরও একবার শুনে নেওয়া যাক এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সেভেন সিস্টার্স এবং এই সেভেন সিস্টার্স নিয়ে মোহাম্মদ ইউনূস এবং তার উপদেষ্টাদের যে এত চিন্তা, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ তাক বাংলাকে কি জানিয়েছেন শুনুন। अभी बांग्लादेश एंड इट्स पॉलिटिकल लीडर्स ये लोग बहुत स्ट्रेट से बोलना शुरू किया कि नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी पार्ट ऑफ बांग्लादेश। अभी आपको देखा होगा कि मोहम्मद यूनिस जब फॉरेन लीडर्स आते हैं, ही प्रेजेंटेड ए मैप ऑफ बांग्लादेश विथ नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर मैप। सो जब से शेख हसीना का गवर्नमेंट डिस्क्लोज हुए, मोहम्मद यूनिस का सरकार आए, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा ज्यादा हुए, खास करके कि नॉर्थ ईस्ट हमारा है। एंड चिकन नेक को लेके जो ब्लैकमेलिंग है, दे हैव उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। सो मेरा लगता है कि दैट वाज द डिजाइन राइट फ्रॉम द डेज ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो व्हेन इट वाज अनडिवाइडेड पाकिस्तान। मेरा लगता है कि यू कैनॉट ट्रीट बांग्लादेश एज ए फ्रेंडली कंट्री. You have to remain alert,
and they have a sinister design so far as Northeast is concerned. Now it has become apparent. अभी वो दिखाई देते हैं straight away. हाँ, और वो बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में इस वक्त फ्लर्ट करते हुए दिख देखिए, रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप इंडिया का साथ नहीं है, यू विल बी विद पाकिस्तान, सो वो तो एक बात है, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो एक तत्काल प्रभाव हो सकता है, इट इज लाइक इन दैट सिनेरियो. सो हम लोग अपना विजिलेंस को बढ़ा के रखना है. वी हैव टू पोस्ट more and more army, paramilitary, at least for defensive purposes, if not offensive. আজ তাকের এই মঞ্চেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আরও বলেন, মুসলমানরা তাকে পছন্দ করেন না। ভোট রাজনীতির প্রশ্নে তার উত্তর, তিনি যদি 1 লাখ টাকাও দেন তাহলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে ভোট দেবেন না। বিহারে নির্বাচন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে হিমন্ত বলেন, শুধু টাকা দিয়ে ভোট পাওয়া যায় এটা সত্যি নয়, সেটা হলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও বিজেপিকে ভোট দিতেন। কি বলেছেন এই প্রসঙ্গে শুনুন। अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है. कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है. एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा. बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है, जो जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा. तो इसीलिए वोट एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं. मैं दोष नहीं देता हूं. ये वोट खाली कोई स्कीम के लिए वोट हो जाता है, ये नहीं होते हैं. लेकिन आपको स्कीम भी करना है, बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, यू हैव टू डू समथिंग. बट खाली उनके लिए ही आपको वोट मिलता है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक असेसमेंट होते हैं. आप भी लेकिन मानते हैं इस बात को कि 10,000 ही बना नीतीश कुमार के लिए चमत्कार? नहीं, देखिए मेरा चुनाव के लगता है, एंड पहले। देखिए 10,000 में आपको हमारे जो वोटर है वो उत्साहित होकर वोट देगा. लेकिन अगर 10,000 का कारण ही जीतेगा तो मुसलमान लोग भी हमें वोट देना चाहिए था. तेजस्वी यादव भी चुनाव जीतना नहीं चाहिए था. सो जो चुनाव जीते ये नीतीश कुमार की सुशासन और मोदी जी का नेतृत्व के लिए, उसमें 10,000 एक एलिमेंट होगा. लेकिन हर लोग तो 10,000 नहीं मिला है, लेकिन वोट से तो जितना लोग 10,000 मिला है उनसे तो हम दुगुना वोट मिला हो, तो बाकी लोग ने हमें क्यों वोट दिए? तो इसीलिए दैट इज ए, आप बोल सकते हैं कि इसका एक প্রভাব रहा. লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।